Hello dear students, good morning. Welcome back to computer class. Children, we are doing chapter first, computer and its evolution, from your computer book Click IT. And till now we have studied about the early calculating machines such as abacus, Napier bones, Pascaline, difference engines and analytical engine. Now in today's class we're gonna go further and we'll read about the evolution, or you can say development of computers, and the various stages and the generations of computers. So let's have the reading. Evolution of computers. The gradual development in the calculating devices led to the invention of computer, and it took several years and stages for the computer to evolve as modern day computer. Now, gradual means slowly and steady. We have been studying about the early calculating devices. तो ये जो early calculating devices थे जैसे कि abacus, pascaline और Napier bones and etc. इनमें ही time to time इनको ही improve किया गया, modification इसमें किया गया, और धीरे धीरे करते करते इस वजह से हम एक कंप्यूटर का इन्वेंशन हो पाया, और इसमें करीब सालों लग गए. ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन कंप्यूटर का इन्वेंशन हो गया, बल्कि आज के टाइम का जो हमारा मॉडर्न डे कंप्यूटर जो हमें जिन पे हम वर्क करते हैं उसको बनने में काफ़ी समय लगा, और बहुत सारे साल इसमें लग गए, स्टेजेस बहुत सारे इसमें लगे, और इन्हीं स्टेजेस को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बोला जाता है. ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है? ये डिकेड्स हैं, जो ईयर्स जो टाइम पीरियड के बीच में ये बनाए गए हैं उन्हीं को ही हम कंप्यूटर जनरेशन्स के नाम से जानते हैं. सो द वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर्स एवोल्यूशन वर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. द पीरियड इज़ 1946 to 1959. अब 1946 से लेके 1959 के बीच में जितने भी कंप्यूटर्स को बनाया गया था, जिनका इन्वेंशन किया गया था, उन्हें हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कहते हैं. वी कॉल देम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. व्हाट आर दे and what are the features of that kind of computers? Let's have the reading for it. The first generation computers were typically large, needed a room for accommodation. They used high speed vacuum tubes as switching devices and had a very small memory. So जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो 1946 से लेके 1959 के बीच में बनाए गए थे, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़े थे साइज़ में. इनकी जो साइज़ था वो बहुत ही लार्ज था, ह्यूज था, और करीब एक बड़ा रूम चाहिए था इसको रखने के लिए. और इसकी जो स्पीड थी वैक्यूम ट्यूब्स की वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी. वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं? अब इन द पिक्चर यू कैन सी हेयर. In the picture you can see here, these are the vacuum tubes, and a vacuum tube is an electronic device that is used in many older model radios and television, and it was used to control the electric current flow. Okay, so these computer use ENIAC. ENIAC stands for electronic numerical integrator and calculator. तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो साइज़ में तो काफ़ी बड़े थे, जिनको रखने के लिए काफ़ी बड़ा रूम चाहिए था, और इसमें हाई स्पीड वाले वैक्यूम ट्यूब्स की ज़रूरत थी, और साथ ही साथ इसकी जो मेमोरी थी, जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, स्मॉल थी. और एग्जांपल्स क्या है इस तरह के कंप्यूटर्स के? एनिएक का अगर फुल फॉर्म निकालेंगे हम तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक numerical integrator and calculator, and they were developed in 1946 by Eckert and Mauchly in USA. You have to learn the name of the inventor along with the date, as like they were developed in 1946 by Eckert and Mauchly in USA. Now let's go further. The first generation computers were very big in size. These are the features of that kind of computers, first generation computers. So they used to be very big in size, slow in speed and gave very low level of accuracy. तो उनकी जो साइज़ थी वो काफ़ी बड़ी थी, स्पीड भी कम थी, साथ ही साथ उसका जो रिज़ल्ट था वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था, बल्कि उसमें एरर्स भी थे. It consumes much of power and generate too much of heat, due to which machine failure took place very often. इस
और ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे बहुत ही ज़्यादा पावर को कंज्यूम करते थे और जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाते थे और जिस वजह से जो मशीन है वो बहुत ही अक्सर ही ख़राब हुआ करती थी, उसमें फेलर्स आया करते थे. सो दीज आर द faults or drawbacks of that first generation computers, you can say. Let's move further and see the second generation computer. And the time period of the second generation computer is 1959 to 1960. 1965, the second generation computers witnessed some major development, such as the vacuum tubes were replaced by transistors and diodes. The replacement helped in reducing the size of the computers as well. सो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1959 से लेकर 1965 के बीच में बनाए गए थे, जो कंप्यूटर्स उन्हें ही बोलते हैं, और इनमें बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए थे. मेजर चेंजेस मीन्स मेजर डेवलपमेंट किए गए थे. वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था. दीज आर ट्रांजिस्टर्स. व्हाट आर दे? Transistors is like a semiconductor device which is used to amplify or switch and electric signals and powers. Okay, you must have seen these kind of transistors in electronic devices as well. And the diodes, these kind of diodes have also been used in the second generation computers. What is a diode? An diode is an electronic device in which the electric current flows in one direction only. So the use of transistors and diodes made the size of the computers very small in comparison to the first generation computers. Okay, ट्रांजिस्टर्स और डायट्स के यूज़ की वजह से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के जो साइज़ थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले छोटे हो गए थे. दे हैड एडवांटेजेस over the first generation computer as they were faster in speed, more reliable, larger storage capacity and required less power consumption. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा बेहतर थे हर तरीके से, जैसे कि वो उनसे ज़्यादा स्पीड वाले थे, मोर रिलायबल थे, मीन्स उसके रिजल्ट्स पे, आउटपुट पे भरोसा किया जा सकता था, और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी ज़्यादा थी, लार्जर थी इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. और साथ ही साथ ये जो पावर कंजम्पशन जो इसका था वो काफ़ी कम था, तो इस वजह से वो हीटअप भी कम हो रहा था. द मशीन फेलर रेट्स वर वेरी लो, और जिसकी वजह से मशीन में ख़राबियाँ बहुत कम आ रही थी. नाउ लेट्स गो फर्दर एंड सी द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. The third generation computers have the period 1965 to 1970. You should keep remember the dates of the generations. The third generation computers used integrated circuits known as chip instead of transistors. They were smaller and had more storage capacity as compared to second generation computers. अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो और मॉडिफिकेशन होता जा रहा था हर जनरेशन के कंप्यूटर्स में, जैसे कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से बेहतर थे, तो उसी तरह से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से बेहतर थे. और इसमें ट्रांजिस्टर की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी, जिसको हम चिप भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, यू मस्ट हैव सीन द पिक्चर एंड इन रियलिटी ऑल्सो यू हैव सीन द सर्किट, द चिप. You must have used this kind of chip in your mobile phones also these days. तो चिप का यूज़ किया जाने लगा था ट्रांजिस्टर्स की जगह पे, और जो कंप्यूटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, और इनमें जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी ज़्यादा हो चुकी थी. और these computers were designed to use an operating system that enable different programs run at the same time. अब इस जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे चिप के वजह से उसमें उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते थे और जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स एक ही टाइम पे रन होते थे. दिस कंप्यूटर वो 10,000 टाइम्स फास्टर दैन दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के जो इन्वेंशन किया गया था वो 10,000 टाइम्स से ज़्यादा बेटर थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स से, मीन्स ज़्यादा फास्टर थे, वो बहुत तेज़ी से वर्क करते थे और इसके जो आउटपुट थे, जो रिजल्ट्स थे, बहुत ही एक्यूरेट थे. एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 360 एंड 370 सीरीज़. और अगर इफ़ एनीवन आस्क यू
that give an example of a third generation computer, तो आप क्या बोलोगे? You gonna answer IBM 360 और 370 सीरीज. IBM 360 ये क्या है? कंप्यूटर्स के नेम है. Now let's go further and see the fourth generation computers. Fourth generation computers, the time period of these kinds of computers is 1970 to 1985. 1970 to 1985. The fourth generation computer used microprocessors. Now you should learn that in fourth generation computers, which element, which device is used? Microprocessors. Okay, microprocessors which further reduce the size of the computer and increase their efficiency. Efficiency means the capacity, क्षमता. These computers have greater computing power than the previous generations. तो fourth generation computers obviously third generation, second generation और first generation इन सबसे ज़्यादा बेहतर थे और इनमें microprocessors का यूज़ किया गया था, ओके, इंस्टेड ऑफ द चिप. और इस वजह से जो साइज़ था वो और भी ज़्यादा छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया, घट गया. और कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी थी, मींस जो काम करने की जो क्षमता थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी. मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स वो देते थे और बहुत ही फास्टर वर्क करते थे. और इनकी जो कंप्यूटिंग पावर थी वो सारी पिछली जनरेशन्स के कंप्यूटर्स से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बेहतर थी. ओके, लेट्स गो फर्दर एंड सी. ओके, the use of microprocessor chip resulted in the development of microcomputer. और microprocessor के यूज़ की वजह से माइक्रोकम्प्यूटर की डेवलपमेंट हो गई. द एरा ऑफ पर्सनल यानी कि पीसी, यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड बिफोर. घर पे हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं उन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर पीसी कहते हैं. That was developed during this period only. तो फोर्थ जनरेशन से बिलोंग करते हैं हमारे घरों में जो पीसीज रखे हुए हैं. अब तो लोग लैपटॉप भी यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इंटेल पेंटियम. Okay, these have been used in PCs. Now let's go further and see the fifth generation computer since 1985. तो 1985 से लेके अब तक की जो पीरियड है, मीन्स जो चल रही है, ऑनगोइंग पीरियड है, उसे हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के नेम से जानते हैं. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर इन डेवलपमेंटल स्टेज. यू शुड नो दैट कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स अब बनाए जा रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं और ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे हैं, विच मीन्स अभी डेवलपमेंट इसमें चल रही है, इस पर वर्क किया जा रहा है और नए नए इसमें एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं. ओके, द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन computer is to develop a device which could respond to a natural language input and is capable of learning and organizing itself, having a power of human intelligence. They will be able to recognize images and graphs. Fifth generation computers, you must have heard the names of Sophia robots and others. आपने सुना होगा, अभी 2017 की बात है. सोफिया रोबोट, जिसको फर्स्ट ऐसी रोबोट है जिसको सऊदी अरबिया ने अपनी वहाँ की सिविलियन बोला है और उसको वहाँ की नागरिकता दी गई है. तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में एआई का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसमें क्या होगा कि इस तरह से प्रोग्रामिंग की जाएगी कंप्यूटर्स की कि वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकेंगे, खुद से ही चीज़ों को पहचान सकेंगे और साथ ही डिसीजन लेने की भी उनके अंदर कैपेसिटी होगी. ओके, और नाउ यू मस्ट हैव सीन मेनी काइंड ऑफ रोबोट्स इन द पिक्चर, इन द मूवीज़. तो ये सारे क्या हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स पे ही बेस्ड हैं, उन्हीं पे बनाए गए हैं और उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है. Correct? Let me show you the picture of these kinds of computers, or you can say that the robots. Okay, let me show you. So here is the picture of Sophia and it is the first robot who has got the citizenship of any country, that is Saudi Arabia. सऊदी अरबिया ने 2017 में इसको अपने देश की नागरिकता दी है. ओके, एंड हेयर कम्स द नेक्स्ट पिक्चर, और ये रोबोट हैं, जापानीज़ कंपनी ने इसको बनाया है. हेयर इज़ द ह्यूबो रोबोट. ओके, एंड दिस वन इज़ द अदर पिक्चर ऑफ अनदर रोबोट.
सो इन सब में AI का यूज़ किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट हैव सीन एंड यू मस्ट हैव यूज द गूगल असिस्टेंट्स मैनी टाइम इन योर मोबाइल फ़ोन्स एंड PCs एंड लैपटॉप्स. तो ये एलेक्सा जो है, गूगल असिस्टेंट जो है, इनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है. ओके, सो नाउ at last let's have the revision through this revision of the generations of computer through this table. Let's see the duration, internal components, size of computer, storage devices, programming languages and famous computer, which means the examples of the respective generations of the computers. Okay, so let us start. First generation we have the duration 1940 to 1956 और इसमें कौन सा इंटरनल कंपोनेंट यूज़ किया गया? वैक्यूम ट्यूब्स का. वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया. इसका जो साइज़ था वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था, वेरी ह्यूज. कंप्यूटर्स जो थे बहुत ही बड़े साइज़ के थे. स्टोरेज डिवाइसेस मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया गया. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया. फेमस कंप्यूटर्स कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? ENIAC, UNIVAC, IBM 705 एक्सेट्रा. नाउ लेट्स गो to the second generation. The duration is 1956 to 1964 and the internal component is transistors. Size of computer used to be smaller than first generations and storage devices again used magnetic tape. Programming languages assembly language का यूज़ किया गया. Famous computers, famous examples हैं IBM 400, IBM 1600, UNIVAC 3rd etc. Now third generation's computer, the duration is 1964 to 1971. Internal component कौन सा यूज़ किया गया? Integrated circuit, that is called IC. Size of computer much smaller than previous generations and storage devices magnetic tape का यूज़ किया गया. Programming language high level languages such as BASIC, Pascal and the examples of third generation computers are IBM 360, IBM 370, UNIVAC 9000 etc. Now comes the fourth generation. Fourth generation has the duration 1971 to 1981. An internal component is used microprocessors. इसमें किसका यूज़ किया गया? माइक्रोप्रोसेसर्स का. साइज ऑफ कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर्स. स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस C++, Java etc. The examples of fourth generation computers are IBM 3033, IBM System 36 Cray first etc. Now comes the fifth generation computers and it has the duration from 1981 or you can say 1986 to present time. And the internal component that is being used is called AI, artificial intelligence. Size of computers, very tiny computers. Storage devices, hard disk, floppy and optical storage. Programming language कौन सा यूज़ किया गया? Natural language like SQL, Prolog etc. And examples of computers that is belong to fifth generations are called Pentium series, laptop, palm top etc. I hope you have understood each and everything related to this chapter. Okay, now I'll see you in next class. Thank you.